Many things are wrong with Liverpool और गेही को लाओ यार. So that I want to give a hug to the Liverpool fan यार. मतलब भाई उसकी हालत देखो यार. वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा एक शब्द यार. Now it feels like defeating Real Madrid was like defeating Burnley or something. It's And what else he needs to prove it? वर्ल्ड कप में भी तो कल का मैच तो आई वाज हेट वाचिंग आई वांटेड बोथ द टीम टू लूज एज अ रियल मैड्रिड फैन मैनचेस्टर सिटी आर अगेन गोइंग टू विन द प्रीमियर लीग दिस सीजन आई गेस रोनाल्डो पीएस मॉर्गन से जितना मैनिपुलेट हुआ है उतना जॉर्जिना से भी नहीं हो रहेगा. देखो तू तो राम था भाई, हम लोग तेरे को देव मानुस था भाई, गलत हम लोग तेरे को समझे भाई. ओ माय गॉड, क्या है भाई? अरे भाई We got Messi and Yamal together before GTA 6. द इंडियन फुटबॉल फेडरेशन दे पॉइंटिंग द फिंगर्स एट द फैंस की फैंस आके नहीं देखते. तुमने भी किया नहीं है जिसकी वजह से फैंस नहीं आ रहे हैं. फैंस हु कम टू स्टेडियम्स जहां पे बाथरूम नहीं चलती, पानी नहीं मिलता अभी भी. एग्जैक्टली. Welcome back to episode 9 of the Rivalry Room, everyone. Before we start off with the international break, हमको लगा थोड़ा एक स्पाइसी मज़ेदार एपिसोड करते हैं. थोड़ा ऑफ टॉपिक होगा, आपको लगता है थोड़ा मज़ेदार होगा. Let us know in the comments what you think. And again, before going ahead into this episode, please leave a like on this video right now. Subscribe to the Game On FC and let us know in the comments who do you want in the next episode. Starting off with the panel today, AS Roma model Pranay Singh. Thank you. ये कोई अफवाह फैला रहा है कि जो भी राइवलरी रूम के एपिसोड में आ रहा है उसको अनिमेश भाई रोमा जर्सी गिफ्ट कर रहे हैं. तो दैट्स एक्चुअली ट्रू गाइस. आई एम नॉट डिनाइंग दैट. The stock is over, guys. The stock is over. Making our Rivalry Room debut, Dr. Simran. Or carrying the Barca flag very high, very happy, AKG. And our amazing fan panel, a big round of applause for them. I can already see Arsenal fan बहुत दुखी लग रहा है आज. He like I thought I would have friends here, but उस पे आते हैं. पहले प्रणय आपके साथ. Let's start off with this immediately. Okay. Man City is come January, come squeaky bum time. आपका तो नवंबर से ही चालू हो गया. नहीं, लास्ट सीजन की अगर हम बात करें तो लास्ट सीजन ये नवंबर ही था जब हमारा डिप हुआ था. क्योंकि मुझे याद है 29 अगस्त को रॉड्री ने बैलन डोर जीता था. 29 अगस्त या सितंबर पे रॉड्री ने बैलन डोर जीता था. और उसके बाद नवंबर जो था हमारा वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ से हमारा क्या कहते हैं रिचार्लिसन कर्स हमारा चालू हुआ था. सो आई डोंट वांट टू जिंक्स एनीथिंग, बट ठीक है अभी हम जीते हैं मैच कल का लिवरपूल का, जिसके बारे में आगे बात करेंगे. बट येस, आई एम हैप्पी अभी हम जहाँ पर हैं. So 1000 games of Pep Guardiola. Yes. Obviously big achievement, 71% win ratio. Fruit of the poisonous tree in the long-term GOAT argument, or he's the GOAT? Is that even a question? I would ask you. That's Is why I'm that even a asking you. question? No, I don't think so. That's a question. Tell me any other manager who has done it in so many leagues, who has done it in Spain, done it in Germany, done it in England, one of the toughest league, as they call it. I don't think so. There should be any. And what else he needs to prove it? वर्ल्ड कप में भी I don't know. Barcelona fans and World Cup. Barcelona fans and World Cup. maybe if he rebuilds this Man City perfectly, because एक बोला जाता है कि he is not good when it comes to rebuilding his teams. तो maybe this season we will get to know it better. Who's better than Pep? Pep से अच्छा कौन है? Maybe trophies and multiple इसमें leagues में करने के लिए maybe कार्लो एंसेलोटी एक compare कर सकते हैं. Longevity की बात कर रहे हो आप? Different leagues, longevity, both. And Champions Leagues to prove it. 5 as a manager. See, we cannot deny कार्लो की longevity जो है, but for me personally it's Pep obviously कि जैसा Pep का ना Pep ने revolutionize किया actually कि कितने लोग Pep जैसा खेल रहे हैं. तो वो एक एडेड फैक्टर भी है, एंड ही डिड इट इन स्पेन. वो तो कार्लो ने भी हर जगह किया है. For me, it's Pep, then Carlo. At the club levels, I think he's one of the best managers.
मतलब कल एक स्टार्ट आया था कि ऑलमोस्ट 70% उसने हर लीग में विन किया है, विद बायर्न, विद बार्सिलोना, विद मैन सिटी, एंड ही हैज़ सीन द जर्नी थ्रू आउट. उसने मेसी के साथ भी खेला है, ही इज़ प्लेइंग विद हालैंड एज वेल. उसने लेवेंडोव्स्की को भी इतना बिल्डअप किया है, एंड अभी भी जो नेक्स्ट जनरेशन आने वाली है उसमें भी उसका इतना बड़ा हाथ है. तो आई थिंक सो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स. और जब तक वो है, आई थिंक सो हालैंड का भी करियर ग्रोथ, हालैंड भी तब तक मैन सिटी में तब तक परफॉर्म करता रहेगा उसी लेवल तक. But last night, man, wow. Arne Slot has lost more games in 2025 than Ruben Amorim. मतलब भाई साहब, and Liverpool look lost. So what about last night's match? आपको क्या लगता है? आप दोनों को, and then obviously we know what Pranay Bhai thinks, but we'll go to him in the end. If you were to look at that match as a neutral, did you feel like this was Pep Guardiola back in Barcelona? ऐसे लग रहा था, old school, just domination. नहीं यार, बार्सिलोना वाली बात तो अनफॉर्चुनेटली विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट नहीं है मैन सिटी में. बट व्हाट आई कैन सी इज कि लोग बहुत बोल रहे हैं कि अर्लिंग हालैंड के ऊपर ये डिपेंडेंट है सिटी की टीम. आई डू नॉट सी इट दैट वे. मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिडफील्ड का कमाल हुआ है, दैट टू विद इंजरीज टू रोड्री, निको को जैसे वो ग्रो कर रहा है गेम इन गेम आउट, ही इज जस्ट फिनोमिनल. फिर आपका डोकू को भी वो इम्प्रूव करवा रहे हैं, हालैंड को भी इम्प्रूव कर रहे हैं, सिल्वा आजकल काम करने लग गया है. तो देयर लेयर्स टू इट कि ये पेप गार्डियोला की मैन सिटी के लिए, और हालैंड को ये जो बॉल्स मिल रहे हैं ये मिडफील्ड की कमाल है. एंड ऑब्वियसली व्हेन यू हैव अ प्लेयर लाइक हालैंड तो फिर तो वो तो स्कोर करेगा ही है. और अभी जो करंट मैनेजर्स अगर देखा जाए, जैसे कि एंजो मारेस्का हो गया, लुइस एनरिके हो गए, और फिर उसके बाद आर्टेटा हो गए, तो ये सब जो मतलब टेन हैग लेकिन मतलब अभी जो करंट मैनेजर्स है, मतलब जो परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, तो मतलब पेप गार्डियोला से ट्रेन होके आए मैन सिटी में जब थे एज अ असिस्टेंट कोच और समथिंग. तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि आफ्टर 10 years मतलब कि जो भी मतलब बड़े बड़े मैनेजर्स होंगे तो मतलब दे विल बी फॉलोइंग लाइक पेप्स लेगेसी जैसे अभी उसने बनाया है. Liverpool, Arteta and Arsenal are still ahead, but Liverpool are out of the race. What do you think? I think they've conceded the title yesterday. कल का मैच तो I was hate watching. I wanted both the teams to lose. As a Real Madrid fan, I cannot support Man City. I cannot support Liverpool because अभी तो हार के आए हैं. तो I was like कि Honest, I love it. first I was like कि लिवरपूल को हरा दो मैनचेस्टर सिटी तो हमें थोड़ा सा दुख कम होगा. But then when I saw Manchester City playing that way, I was like एक महीने बाद तो हमें भी इनके साथ खेलना है. And I was like नहीं ये क्या हो रहा है. तो it was not fun. But I feel Manchester City are again going to win the Premier League this season. पूछा मेरा बुनविना बोले हो गया, ऐलान कर दिया ऑलरेडी. I have this like strong feeling. I do not know why. I'm like आप जिस तरह से उनका खेलना देख थोड़ी और मुस्कुराहट छुपाओ, आप थोड़ा ट्राई करो. I want to stay humble. No hate to Arsenal fans. Like if I like any Premier League club, it is Arsenal. But I have seen them bottling day in, day out, every season. So, Christmas के बाद, Arsenal, whenever they come back differently. This year is our year. If it happens, I'll be the happiest. But of course, who would want City to win again? Who would want Pep Guardiola की और ज़्यादा उसको बढ़ा चढ़ा के बोले? Because it's Johan Cruyff. Everyone talks about him, and then they'll talk about Pep Guardiola. And हमारा क्या? तो I would not want that, but it looks that way. चलो, United fans will have some तसल्ली. Liverpool 21 तो नहीं जीतेगी आपके पहले. But it's not like they're winning 21 in the next 21 years at the way it's going. But yeah. बट आई थिंक यार जितनी हम बात करते हैं हालैंड की, बट जो फॉर्म आया है फोडन का, आई थिंक हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए. लोग ये चीज़ कहते हैं कि हालैंड गोल मारता है. फोडन जब आई गेस ट्रेबल जीते थे, ही वॉज द प्लेयर ऑफ द सीजन ऑफ मैन सिटी. आई थिंक जो डॉर्टमंड के सामने उसका गेम था, आई थिंक हमें डरना चाहिए. टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं हालैंड से ज़्यादा डरा नहीं हूँ. इफ़ वी प्ले नेक्स्ट मंथ ये फॉर्म में मैड्रिड के, फोडन इज वन ऑफ द प्लेयर दैट आई थिंक विल बी अ बिट मोर थ्रेटफुल देन हालैंड. आपने फोरन की बात की, एक आप बोलते हो ना कि एक स्टैट्स आर सो इम्पोर्टेंट, बट द प्लेयर हु ऑलवेज बीट दिस मिथ फाइनली इज डोकू. एंड आई थिंक कल जब ये अभी आप जो जेरमी डोकू की बात कर रहे हो, तो कल रात को मैंने twitter.com पे देखा कि जेरमी डोकू इज द लियोनेल मेसी ऑफ एडामा ट्रेवरेस. And I just couldn't get that thing out of my head. मैंने कहा यार किसने सोचा है What ये is so बात? random? It's a random. ये किसके दिमाग में आएगा to write it? I don't know. But कल का गेम जो जेरमी डोकू का था, I think surreal performance. Because we are all reactionary people. Apart from the Arsenal fan over there, do we all think now that Man City are favourites? After yesterday's performance, that feels so. But before coming to Man City, being a Liverpool fan, I also like. I was devastated yesterday, first of all. But yeah, absolutely shambolic performance, guys. Because you are coming off a Real Madrid win,
1-0, and you should be pumped up for this game actually, because even if that game was for prestige and everything, your title winning, like your title defense is on the line here, so you should turn up. ठीक है, I can understand you ran a lot in that game, थक गए थे players and all that, but this is not how you come back after a solid performance. ऊपर से I think Mo Salah is also done. It looks like that. He cannot play 2 to 3 games week in week out. Unpopular opinion बाकी है. It felt like now the players are not playing for the crest itself. क्या था मतलब वो थर्ड गोल के बाद तो ऐसे shoulders down हो गए, they were just walking like strolling, मतलब like it's the end of the world and all that thing. You just came off a 1-0 win. This is what Pep Guardiola does to people, Yeah, man. I was about to say, आप लग रहा है आप पूरे के पूरे टूट गए हो. Many things are wrong with Liverpool. और गेही को लाओ यार समर विंडो में, विंटर विंडो में लाओ यार, कम ऑन. For that I want to give a hug to the Liverpool fan यार, मतलब भाई उसकी हालत देखो यार, वो बेचारा कुछ बोल नहीं पा रहा है एक शब्द यार, so it's fine. Me from last year, I feel. Coming from winning from Real Madrid, तो सोच के गए होंगे कि let's do this. Now it feels We have got like it. defeating Real Madrid was like defeating Burnley or something. That's the standards now. Standards are so low. I want to give you एक ऐसे वर्चुअल हक भाई दूर से. यार आई थिंक दैट ये लिवरपूल का गेम ना बहुत रॉन्ग टाइम पे आ गया. एक तो आपने मैड्रिड के खिलाफ जीता और आपने अपने पूरे कार्ड्स टेबल में रख दिए, वो भी पेप गार्डियोला के सामने. अब पेप गार्डियोला के सामने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल दिया, उसको पता है कि अब वो करना क्या है, तो उसने वो किया. प्लस ऑब्वियसली वो फटीग वाली बात जो अपन कह रहे थे कि वो फटीग थी आपकी टीम. बट जोक्स अपार्ट, लाइक लिवरपूल अभी दो लोगों को ज़्यादा मिस कर रही है. लाइक एक तो है ऑब्वियसली ट्रेंट, क्योंकि जो वो क्रॉसेस डालता है मो साला को, और सेकंड एक है वो लाइक वो मेंटली मिस कर रहे हैं कि जो डियोगो जोटा की जो डेथ हुई, तो उससे लाइक जो भी मतलब ऑब्वियसली पूरा टीम क्लोज था, तो वो एक मेंटली भी उनको एक डिस्टर्बेंस है. और मो साला को तो और है, ऊपर से जो विंग पे खेलता है ट्रेंट को, उसकी मतलब मो साला को ट्रेंट की इतनी आदत है कि अगर वो क्रॉस डालता है तो उसके पैर में आ ही जाता है. तो वो जो गैप है वो फ्रिम्पोंग भी फिल नहीं कर पा रहा है. अगर उस जगह पे शोबोसलाई खेलता है तो मिडफील्ड में थोड़ा एक क्रैक आ जाता है. And yes, of course, Diego Jota, as we all know, like Yeah. मतलब उसका डिमाइस आई थिंक प्लेयर के मेंटली इतने सारे प्लेयर्स उसके क्लोज थे. That also affects the dressing room. Players, fans, वो fans stadium में आते हैं जो who are regular season ticket holders. You know, we've heard and seen कि you know teams have perished unfortunately sometimes, but just one player missing, you know, you feel that void. I think हम ऐसे casually बात हम कर सकते हैं, बट वहाँ पे क्या हो रहा होगा हमको ही क्या मालूम, उनको ही मालूम है. वो 11 प्लेयर या वो 15 प्लेयर जो ड्रेसिंग रूम में है, इट्स जस्ट समथिंग दैट वी कांट एवर कंपेयर, राइट, दैट काइंड ऑफ लॉस मेंटली. बट जस्ट रैपिंग अप द कॉन्वर्सेशन फ्रॉम देन यस्टरडेज मैच, we could have gone to it in the start. The debate would have been never ending. But was that a goal or no? Yes or no only? Yes or no only. Yes. Hand on your heart. That Touching was a the goal. Roma crest. That was a goal. That was a goal? That was a goal. Obviously it is a goal. That was a goal. Van Dijk is not a goal. Van Dijk one was not a Okay, goal. fair enough. That's it. अगर जो आपको कमेंट्स में लगता है कि it was rightly ruled out the Van Dijk goal because of Robertson interfering in an offside position, तो let us know. If you think it was stolen, let us know. So since you already mentioned the Ronaldo interview, right? उसने बहुत ही मज़ेदार चीज़ थी. I'll start off with you. It's easier to score in Saudi. It's easier to score in La Liga than Saudi. आई फील ये आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो आउट किया गया है, स्पेशली दिस लाइन. बाकी का भले आई वुड अग्री या नहीं, वो तो चलो बात की बात है, बट दिस वन वाज थोड़ा सा आउट ऑफ प्रोपोर्शन. वो बोला था मेरे लिए इजी है, सबके लिए नहीं है, मेरे लिए इजी था ला लीगा में ज़्यादा गोल्स स्कोर करना. मैंने मीम्स देख के आई वाज लाइक कि नहीं, बैठ के पूरा दोनों पार्ट देखने हैं, बिकॉज अदरवाइज इफ यू सी ऑन द इंटरनेट यू विल बी लाइक क्या बोले जा रहा है. तो दैट line was blown way out of proportions. पहली बात तो he also mentioned the weather there कि 40 degrees में खेलना it's not easy. He also said not only me, ask all the top players who come here, ask them how it is, how is it easy to score there. तो ये पूरा conversation चला है जिसमें he said कि ला लीगा में मेरे लिए easy था. Of course easy था, he was young, he was at his prime and he was actually destroying all the clubs in La Liga. 6 गोल्स 4 गोल्स एक गेम में मार रहा था यार. It was easy for him and अभी एज फैक्टर भी आ जाती है, उसके हिसाब से ही इज डूइंग हिज बेस्ट. बट तो वो कंपैरिजन कि मेरे लिए इजी है, इट वाज जस्ट एन. और पियर्स मॉर्गन इज पियर्स मॉर्गन, ही इज लाइक कि कुछ तो दो मुझे जिससे मेरा नाम और 2-3 साल फैंस को याद रहे, एंड ही डज दैट. एंड आई वांट टू लाइक रोनाल्डो भाई प्लीज उसको प्लीज 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 लाइक
block his number, but I love like whenever these interviews come out, he's always in the media and wherever he is, the camera follows. Should he be limiting that as a fan? Probably yes. But I mean, you can't take out that character out from Ronaldo. That is what truly defies him. वो जहाँ पर भी रहता है, he's blunt, he's honest, and you don't see much players having that nowadays. People, you know, ऐसी कोई भी conversation होती है, players get quiet, they don't give any interview. So Ronaldo is a different, वो honest है उन सब चीज़ों के बारे में. बट आई जस्ट वांट टू से कि ये ज़रूरत नहीं है एज अ रोनाल्डो फैन. देखो बहुत ऐसे स्टेटमेंट्स है कि मार्केट में भाई आपको अगर न्यूज़ बेचनी है तो आप एक क्लिप काट के डाल दो, जैसे ये बहुत किया था फब्रिजियो ने. आई थिंक दैट वाज यूजलेस. बट अगर आप बात करो, वन थिंग जो मेरे को एज अ रोनाल्डो फैन वो पूरे इंटरव्यू में ख़राब लगी, सिर्फ एक चीज़ जो उसने कही मेसी के बारे में. देखो टू बी वेरी ऑनेस्ट, 6 या 7 मैच है, अगर तू जीत जाएगा, फॉर एग्जाम्पल यूर रोनाल्डो, इफ़ यू विन इट, भाई तू पूरे दुनिया को सर पे लेके यू विल डू. बट एक चीज़ आई थिंक उसके वो कहना ये चाहता था कि अगर अर्जेंटीना तीसरा वर्ल्ड कप जीतती तो इतना ज़्यादा शॉकिंग नहीं होता, पोर्चुगल के लिए होता, क्योंकि वो लोग एक भी नहीं जीते. एंड आई थिंक यार, जैसे हम मेसी की, आई एम रोनाल्डो फैन, मैं जानता हूँ मेसी किस क्या कहते हैं फॉर्म से गुजर रहा था. लूजिंग फाइनल्स बाय फाइनल्स, वो कोपा अमेरिका हारा, फिर उसके बाद वो रिटायर हो गया एंड एवरीथिंग, वो फीफा वर्ल्ड कप फाइनल भी हारा. तो आप ये तो नहीं कह सकते कि इतना 6-7 मैच मैटर नहीं करता है. मानो कि अगर मेसी नहीं जीतता वर्ल्ड कप तो फिर वही बात होती ना कि मैराडोना तो क्या ही किया भाई, मैराडोना बहुत ऊपर है अर्जेंटीना में. तो आई थिंक ये एक चीज़ आई डोंट थिंक सही थी. बाकी तो यार आई गेस रोनाल्डो PS मॉर्गन से जितना मैनिपुलेट हुआ है उतना जॉर्जिना से भी नहीं हो रहेगा. अगर जब अग्री करते हो कि लमीन यमाल, ओह सॉरी, रोनाल्डो का एटीट्यूड इज जस्टिफाइड एंड द थिंग्स ही सेज इज कंप्लीटली करेक्ट, लेट अस नो इन द कमेंट्स. रोनाल्डो इज द गोट. इट इज नथिंग टू डू विद मेसी, नथिंग टू डू विद एनीबडी एल्स. वो अपनी खुद की बात कर रहा है. या आपको लगता है कि नहीं भैया ज़्यादा ही एरोगेंट बन रहा है, अभी भी बोलने की ज़रूरत नहीं है, वर्ल्ड कप नहीं जीता है, वो आपके ओपिनियन है. प्लीज लेट अस नो व्हाट यू एग्जैक्टली थिंक. एंड अगेन बिफोर मूविंग अहेड, प्लीज लीव अ लाइक राइट नाउ ऑन दिस एपिसोड एंड सब्सक्राइब टू द गेम ऑन FC. योर मोस्ट अनपॉपुलर ओपिनियन विदाउट कॉन्टेक्स्ट एंड नो एक्सप्लेनेशन, with you, starting with you. आई थिंक पेनाल्टीज को स्क्रैप कर देना चाहिए और वापस से गोल्डन गोल लाना चाहिए. career wise, I would put Gareth Bale above Neymar Jr. Animesh knows Erling Haaland to score 50 Premier League goals this season. And this was before the game week 1 happened. 100% attest. Cristiano Ronaldo at Man City would have been better than Messi at Barcelona. What? What? Luis Diaz was more crucial and Mo Salah in Liverpool's PL winning season. Whoa, man, come on. PSG destroyed more career than built. Ozil is a better playmaker than Kevin De Bruyne. Okay. San Mario national football team can defeat Tottenham Hotspur easily. If Ruben Amorim gets sacked, Manchester United should hire the manager from Loki Ferguson's family. क्या बोल रही है? अरे सॉरी, ऐसा एलेक्स फर्ग्यूसन वापस मैं सोच रहा हूँ ये कौन है भाई? पर लॉकी बोला कोई उसका फुटबॉलर खानदान में, like I forgot poor ball knowledge. मैं भी लॉकी पहले वही सोचा. अगर वो ये मत डालना मैं आऊंगा ही वापस. मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई हाथ. क्या कर रहा है? ये तो जाएगा ही जाएगा भाई. डालो अभी डालो. आराम से. Take your time. Breathe. If Ruben Amorim gets sacked, Manchester United should hire the next manager from Sir Alex Ferguson's family. तुमसे ना हो पाएगा. दोबारा. Sir Alex दोबारा. If Ruben Amorim gets sacked, Manchester United should hire the next manager from Sir Alex Ferguson's family. हो गया भाई. Harry Kane is a better striker than Luis Suarez. Liverpool are digging their own grave by not sacking Slot. Pablo Gavi was and will always be the most overrated golden ball winner.
Erling Haaland will beat Aguero's record, goal scoring record for Man City, and then no one will ever break his record. Wow, man. Nice one. Those were everyone's most unpopular opinions. Like I said last time, आपको लगता है कि शायद rage bait हो, stupid opinions हो, but सबका अपना राय होता है, सबका अपनी फुटबॉल देखने की नजरिया होता है. Sometimes you never know how someone can open up your mind or make you just laugh and have a good time while eating lunch, right? Let us know in the comments what your most unpopular opinions are. आप agree करते हो, disagree करते हो. And again, before going ahead, please leave a like on this video because without you, rivalry room possible नहीं है. Since we are here and AKG is smiling because Barca is thriving, अभी तो वो लॉस का फर्क नहीं गिरता आपको एल क्लासिको का. सेफ टू से फ्लिक का जो डिमाइस प्लान हुआ था अभी के लिए तो मतलब पॉज पे है. नहीं हमेशा के लिए पॉज में ही रहेगा वो. व्हाट आई फील अबाउट फ्लिक ना दैट द फैंस आर वेरी रिएक्शनरी ओवर यू नो व्हाट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ गेम्स. पिछले सीजन में वी वर कंसीडिंग गोल्स हियर एंड देयर. सेल्टा वीगो, रायो, एथलेटिको मैड्रिड, रियल मैड्रिड, एवरीबडी स्मैश्ड गोल अगेंस्ट अस. बस वो एक डिफरेंस वाली पॉइंट हमारे लिए रहता था कि हमारे अटैकर्स अवेलेबल रहते थे जो हमको हाई लाइन के उस पार ले जाते थे. व्हाट आई मीन इज कि ठीक है यू कंसीड 3 गोल्स बट देयर वाज दैट समवन स्पेशल जो चौथा गोल मार देता था. तो लोग भूल जाते थे कि हाँ हाई लाइन. अब फिर ना क्या नरेटिव हो जाती थी कि हाई लाइन इज वेरी रिस्की बट इट्स अवॉर्डिंग एज वेल. तो रफीनिया आके गोल मार दिया, यमाल आके मार दिया, लेवेंडोस्की आके मार दिया. नाउ दिस सीजन व्हाट इज हैपनिंग कि कोई वो गोल स्कोरर है ही नहीं हमारे पास जिसके चलते हम हमारा दूसरा लाइन बोल पाए. तो हाई लाइन इज रिस्की अब, लेकिन कोई नहीं ना बोलने वाला कि भाई इट्स अवॉर्डिंग एज वेल. तो वो एक प्रॉब्लम हो गई थी. अब वो रिस्की चल रहा था. So yes, now that the attackers are back, I feel that obviously we'll thrive on highline wala football once again. Yes, there are अभी भी थोड़ा सा questionable because things to say क्योंकि फुल बैक्स हमारे फॉर्म में नहीं है. बाल्दे कभी आउट ऑफ वो फॉर्म चले जाते हैं, कभी कुंडे का तो फॉर्म ही नहीं समझ में आ रहा है. सो देयर्स दैट बट आई स्टिल फील दैट विथ ऑल द अटैकर्स इन, एक बार रफीनिया, लेवेंडोस्की जैसा कल देखा हमने हैट्रिक, वी कैन एटलीस्ट गो फॉर ला लीगा दिस सीजन. तो इंटरेस्टिंग, फेयर इनफ. रैशफोर्ड ने डेब्यूटाइज किया है इन राफिनियाज एब्सेंस. वुड यू स्टिल थिंक कि रैशफोर्ड का जो कट थ्रोट डील मिल सकता है आपको एंड ऑफ द सीजन वो जस्टिफाइड है? और व्हाट बार्सा फैंस थॉट 60 million ओवररेटेड लुइस डियाज वुड हैव बीन द बार्गेन ऑफ द सेंचुरी? ओह माय गॉड, ऑब्वियसली यार वो अब तो लुइस, आई फील बार्सा फैंस क्यों वो तोड़ा हमको ऐसे. खुश आए थे हम यहाँ पे, खुश आए थे. डेको तू तो राम था भाई, हम लोग तेरे को देव मानुस था भाई. गलत हम लोग तेरे को समझे भाई. डेको वाज विजनरी, अनफॉर्चुनेटली वी डिड नॉट सी हिज विजन. बट या बट रैशफोर्ड इज आल्सो गोइंग गुड. आज के बिना बोल नहीं पा रहे. तो यस ओके, नोबडी एक्सपेक्टेड ना रैशफोर्ड उतना अच्छा हमारे लिए नहीं वांट लाइक पैसा आ रहा है. बट ऑब्वियसली देयर इज ऑलवेज दैट क्वेश्चन कि भाई आफ्टर दैट परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट क्या पता वो चलेगा कि नहीं चलेगा. डिफेंसिव क्वालिटी के ऊपर नो बैक सीज. हां ले लो आप रखो. नहीं आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं है. बिकॉज आई फील व्हाट आई फील इज दैट इट्स गुड टू हैव रैशफोर्ड भले किसी के ना होते हुए. मतलब व्हाट आई फील कि कुछ ना होने से अच्छा तो रैशफोर्ड है ना, ये मेरा कहना है. और लेफ्ट विंग में हमारे पास है भी नहीं और हमारे पास पैसे भी नहीं है कि हम जाकर के किसी को साइन कराएंगे. तो काफ़ी अच्छा डील है भाई रैशफोर्ड. आई फील दैट ही इज डूइंग ग्रेट. हांसी फ्लिक इज डिमांडिंग अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम रैशफोर्ड. ही इज आस्किंग हिम टू गेट बैक एज वेल, टू डिफेंड मोर. कल के गेम में वी सॉ दैट ही वाज डिफेंडिंग रियली गुड. सो आई लाइक व्हाट रैशफोर्ड इज डूइंग सो फार. And because we have the Real Madrid fan here as well who's very upset. You know, Madrid जब भी आए थे यहाँ पे, when Xabi Alonso came to Madrid, right? Like, oh, we're starting off with the Club World Cup and वो Bayern Leverkusen का सीजन लेके आएगा. 2 मैच में गोल ही नहीं मारे है, थोड़ा ओवर कॉम्प्लिकेट कर रहा है. What is going on? It's just लिवरपूल से हार गए. आपने बोला कि आपके पास कोई स्ट्राइकर ही नहीं था. एम्बापे बेचे कहाँ के गया था? Where was Mbappe? It's not that. Would you take Harry Kane for 65 million next year? We have the money, I will. So are you telling me Mbappe will be benched happily? I think Mbappe will be playing in the left. So now we know Madrid fans who's going to leave next year according to her. Don't cry your heart out. अरे यार. I don't think Vinicius should leave. I'm sorry, I don't agree. I also don't mean that. It was Oh, joke था वो. Oh God. I have seen him. Vinny stan.
I'm the biggest Vinny stan. ऑब्वियसली क्योंकि वी हैव सीन हिम जब से वो आया है तब से उसके फर्स्ट डे से लेके जो प्लेयर था अभी वो है. बट आई जस्ट वांट टू से कल के गेम के बारे में, रायो का जो गेम था, ज़ाबी अलोंसो ने एक चीज़ कही प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके कि आई नो वी हैव स्ट्रगल्ड हियर. तो इट इज़ ठीक है कि हमने यहाँ पे ये कर दिया, बट सर जी आपको पता है कि आप यहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हो 3 साल से. आपके पास लौंडे है जिनका भाई अंदर गरम खून है, आप उनको वर्क हार्ड कराओ ना. आई एम सो सॉरी बट अगर एम्बापे कल के गेम में नहीं दिख रहा है, आई नो एम्बापे, विनीशियस, बेलिंगम ऐसे लास्ट players 2 हैं. गेम में नहीं दिख रहा है. एग्जैक्टली आई नो कि ये लोग ऐसे प्लेयर्स हैं कि वो 1 सेकंड में गेम बदल सकते हैं. बट फिर आपने ये चीज़ भी कही है कि मेरी टीम में कोई भी पक्का गारे लोग नहीं है, कोई भी मेरी टीम में खेल सकता है. तो एम्बापे इज नॉट प्लेइंग गुड. आप गोंजालो को क्यों नहीं लाते हो? ये पॉइंट बोलने के बाद ऐसे लगता नहीं है कि आपकी टीम 3 पॉइंट ऊपर है टेबल में. आई गेस हम रियल मैड्रिड फैंस बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज करते हैं अपनी टीम को बिकॉज ऑफ कोर्स वी लव टू विन. कोई भी सीजन हमने चैंपियंस लीग नहीं जीती है तो दैट सीजन इज कंसिडर्ड एज अ फेलियर, है ना. ला लीगा जीत गए कोई बात नहीं, चैंपियंस लीग कहाँ है. तो दैट हैपेंड 2024 में जीतने के बाद वी हैड द वर्स्ट सीजन. एम्बापे आया एंड अचानक से पूरी टीम का जो बैलेंस था वो बिगड़ गया. वी सॉ दैट बिकॉज वो स्टार बैलेंस जो था, जो विनी था पहले, उससे एम्बापे आ गया एंड देन वी सॉ दैट स्ट्रगल. अभी जो तुम बोल रहे हो कि लाइक एम्बापे को बेंच पे रख सकते हैं, सी आई थिंक सेम चीज़ बोलिए, एवरी टीम नीड्स अ फोकल पॉइंट. If he's starting. I agree with you. If he's not playing well, second half में he should have been benched. I agree with you there. जब goals नहीं आ रहे हैं तो we can make the changes. Ronaldo भी bench हुआ है. Like we have seen players getting benched for not scoring or not playing well. And और बात डीन हाउसन की कही थी तुमने, तो उस बात पे I completely agree with you. एसेंसियो ने क्लब वर्ल्ड कप पे 2 गलतियाँ की थी, उसके वजह से he was like कि Xabi Alonso does not trust in him, but we saw what Asensio is capable of last season जब all of our players were not performing. Asensio एक लौता बंदा था जो आया हमारे क्या बोलते हैं अकेडमी से आया एंड ही परफॉर्म्ड, ही पुट दो सेव्स एंड उसका पहला एक असिस्ट था जो ब्रॉट अस बैक मेमोरीज ऑफ द टोनी क्रूस ने जो इतना अच्छा असिस्ट दिया था विनी को. तो इफ हाउसन का थोड़ा सा आई फील थोड़े से उसके He's young, but he's still young ना. एक प्रीमियर लीग से यहाँ पे yes, I will मैंने एक चीज़ बोली थी, there is this thing called prefrontal cortex जो do not mind लड़कों का, see like लड़के after 25 you guys feel that you guys can decide better. Before 25 तक क्या होता है, No. वो the thinking ability, decision making ability वो थोड़ा सा like hot blooded, right? Guys are hot blooded like 18, 19, they are very hot blooded. तो डीन हाउसन में मुझे वो दिखता है, he does not think, he makes those tackles which are not necessary. He has got like cards, वो cards के ऊपर cards उठा रहा है and I think he needs to be sat down by Xabi and बात करनी चाहिए इस बारे में. I mean डैनी कार्वाहाल भी ये गलतियाँ कर देता है, like he is so old and like रियल मैड्रिड के डिफेंडर्स में ये चीज पहले से ही है. वी हैव सीन इट विद But you think he's trying too hard? Maybe he's trying too hard to prove himself because वो जब नया नया आया था, the kind of balls he played, मतलब कि वो पीछे ही नहीं रहता, वो आगे he is like completely putting forward his foot and वो अटैक में भी is helping. तो अचानक से क्या हो गया, उसका 1-2 खराब मैच गया एंड बीच में उसकी इंजरी हो गई. He is now starting to थोड़ा सा फंबल कर रहा है वो एंड वो उसके एक्सप्रेशन में दिख रहा है. तो इफ ही इज फंबलिंग आई थिंक ही नीड्स टू बी पुट टू रेस्ट बिकॉज कॉन्फिडेंस फिर और ज्यादा डिप हो जाएगा. Or you're looking at Carreras who's coming at the same time as you, And similar Carreras age, now- and he's thriving. Carreras has now like overshadowed डीन हाउसन इन टर्म्स ऑफ हमारे जो नए साइनिंग्स आए हैं उसमें. तो आई फील डीन हाउसन को भी 1-2 मैच बिठाओ, एसेंसियो एंड मिलिटाओ का कॉम्बिनेशन खिलाओ एंड आगे आई फील कि वी शुड ऑल्सो चेक कि विनी और एम्बापे में से किसी एक को बेंच पे रख के आई वुड लाइक टू सी लेफ्ट फ्लैंक पे एम्बापे और विनी, गोंजालो गार्सिया एंड देन राइट फ्लैंक पे अभी तो मास्तांतुआनो है नहीं, बट आई वुड हैव लव टू सी इन दैट कॉम्बो कि वो कैसा वर्क करता है. बट आई थिंक इट इज़ वेरी टफ कि आप विनी एंड एम्बापे को बिठा दो. आई थिंक विनी के आगे कल की गेम में बात करूँ तो ही हैड 22 डुअल्स, वो 9 जीता एंड 12 हारा. ही वॉज ट्राइंग. बट फिर बात है ना, आपने बात की करेरास की. करेरास के गेम में अगर हम एक चीज़ देखें, अगर वो थोड़ा फंबल करता है तो वो डीन हाउसन को भी अफेक्ट करता है. आप एथलेटिको वाला गेम देखो, करेरास ने बहुत बेकार स्टार्ट किया था, डीन हाउसन स्लिप ऑफ हो गया. उसके बाद लिवरपूल के सामने भी सेम चीज़ हुई. बट आई स्टिल फील कि एम्बापे विनीशियस में से इफ नेसेसरी आप विनीशियस को बाहर निकाल सकते हो. इफ ही इज नॉट हैविंग अ गुड गेम तो मे बी यू कैन ट्राई वंस विद एम्बापे, क्योंकि एंड्रिक वहाँ पे बैठ के रो रहा है बेचारा कि कार्लो एंसेलोटी ने क्या सपने दिखाए थे मुझे, भाई स्पेन में घुमाऊंगा तेरे को, बेंच पे बिठा दिया उसको. वही चीज़ है, लाइक यू सेड कि लाइक इट्स डिफिकल्ट है ना कि आप विनी या एम्बापे जैसे प्लेयर्स को, विनी को तो आप फिर भी रख दोगे
Now Mbappe is the focal star. And जितना भी जाबी अलोंसो कह दे कि अच्छा नहीं खेलोगे बेंच पे रखूंगा, there is also this pressure that comes from the management and we know what kind of club Real Madrid is. We know why Ancelotti इतने टाइम तक चला because he was very docile with the management. वो उनकी बात सुनता था and we saw last season जब हमारे पास results नहीं आ रहे थे तब भी he was not substituting players, तब भी he was not changing the tactics, तब भी वो like he was playing the players and हम लोग हार रहे थे. तो वो चीज़ थोड़ी सी big clubs में ना ये चीज़ आ जाती है कि you cannot always do as a manager what you want. You also have to answer. But the manager there came with a lot of credit in the bank versus someone who's trying to prove himself at his first big job, like a very level up job. I feel he has already proven himself. ठीक है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि अभी तक हम लोग ने कितने मैचेस हारे हैं, सिर्फ 2 मैचेस हारे हैं जिसमें से But your big match was Liverpool and it was Atletico Madrid. Barca were reduced numbers. Yes, बारसा के साथ हम लोग जीत गए. एटलेटिको मैड्रिड it was bad, it was pretty bad because वही सेम चीज़ जो जिस वजह से हम लोग लिवरपूल से हारे थे, सेट पीसेस डिफेंडिंग जिसमें आई सी सो मच गैप्स एंड आई एम लाइक यार मैक एलिस्टर से कैसे गोल खा सकते हैं हम लोग, कैसे, Shortest player on the हाउ इज pitch. दैट पॉसिबल. हमारे पास एक 6 फुट कितना 7 इंच का हमारे पास डिफेंडर एंड लाइक दैट वाज बैड. एंड वो सेम चीज़ एटलेटिको के साथ भी हुई है. इट्स ऑलवेज एन अर्जेंटाइन. मैड्रिड फैन से पूछना चाहूँगा, अगर आप डिफेंडर्स ही लाने वाले थे तो फिर आप कार्लो एंचेलोटी को हटाना वाज अ राइट डिसीजन. लाइक डिफेंडर्स तो दैट वाज द मेन थिंग ना, कार्लो एंचेलोटी वांटेड डिफेंडर्स. तो अब जब आपको डिफेंडर्स लाने ही था तो फिर कार्लो एंचेलोटी को आपने हटाया. आर यू कार्लो एंचेलोटी को हटाने का ये भी रीज़न था कि रियल मैड्रिड में इतना लंबा मैनेजर रखना इज़ नॉट सस्टेनेबल. ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाता है एंड रियल मैड्रिड इज़ अ क्लब जहाँ पे आप नए नए आते हो, यू डू नॉट गेट टाइम की लाइक ओके आई एम बिल्डिंग. अब अगर आप पहले 1-2 महीने में इफ़ यू कैन नॉट प्रूव योर सेल्फ यू विल बी सैक्ड. यू डू नॉट गेट दैट टाइम. जो एटलेटिको मैड्रिड जो सिमियोनी के साथ साल भर साल चल रही है वो चीज़ नहीं पॉसिबल है रियल मैड्रिड के लिए. तो कार्लो एंचेलोटी को अगर हम लोग रख लेते और डिफेंडर्स आ जाते, उसके बाद अगर वो परफॉर्म नहीं करता तो ही वुड हैव बीन सैक्ड. एंड उसके बाद इट लुक्स बैड बिकॉज कि उसने इतना सब कुछ आके फिर से जितवाया एंड देन सैक होना. तो एक लॉन्जे मतलब कि बिग क्लब्स के लिए आई थिंक मैनेजर का टाइम पीरियड एंड जिजू वॉज वेरी स्मार्ट. ही न्यू हिज वर्थ. उसने 3 जिताया. रोनाल्डो गया, ही वॉज लाइक आई एम ऑल्सो लीविंग बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट हिज लेगेसी टू बी टेंटेड. उसके बाद रियल मैड्रिड स्ट्रगल, ही केम बैक, उसने जितवाया. उसके बाद एक सीजन स्ट्रगल पे गया. ऑफ कोर्स देयर वर इंजरीज एंड एवरीथिंग बट ही लेफ्ट ऑन हिज ओन बिकॉज ही न्यू कि इट्स टाइम. और वो रिफ्रेश एक चाहिए, एक नया टैक्टिक्स. एंड आई थिंक जाबी अलोंसो कमिंग वॉज एन एब्सोल्युटली गुड डिसीजन बिकॉज अभी जितना टेक्निकल हो गया है फुटबॉल, वो फ्लेयर एंड एवरीथिंग, हमारे पास अभी रोनाल्डो नहीं है, हमारे पास अभी बेंजेमा नहीं है. एंड कार्लो एंचेलोटी ने भगवान के भरोसे विनीशियस जूनियर में भी वो मैजिक डाल दिया था जो हम लोग रियल मैड्रिड को देखते हैं. लाइक रियल मैड्रिड इज नॉट ऑलवेज अबाउट टैक्टिक्स, इट्स आल्सो अबाउट मैजिक. तो ऑरा तो हाँ, एंड देन वी लॉस्ट Dropping the right words at the right time right there. Exactly. ऑरा तो लाइक वी लॉस्ट मॉड्रिच, वी लॉस्ट क्रूज. तो वी नीडेड अ चेंज, वी नीडेड अ सिस्टम. लाइक ये भी खेल के देख लेते हैं, क्या ही दिक्कत है. तो वी नीडेड जाबी अलोंसो. बट फेयर इनफ. देखो अभी भी आपके 12 गेम भी खत्म हुए हैं, अभी भी मैड्रिड इज अहेड. बट इट बैक्स टू डिफर. दिस इज अ क्वेश्चन अगेन टू द जनता एट होम कि अगर जो एकेजी भाई ने एकदम सही सवाल पूछा कि अगर जो वैसे करना ही था तो व्हाई हैव यू गॉन एंड गॉट अ मैनेजर हु इन द एंड वांट्स टू मेक अ लॉन्ग टर्म प्लान एंड मेक द प्लेयर्स प्ले हिज वे जब भी आपको टाइम ही नहीं मिलती. क्या शायद फाइनली पापा पेरेज हैज चेंज्ड हिज माइंड? मे बी देयर समथिंग brewing under behind the scenes. Madrid fans don't know, right? Let us know what you think in the comments about what Madrid and Barca are going to go and finish at the end of the season. मैं बस यहाँ पे ये segment end करने वाला था, but my producer has told me something very interesting. उसने मुझे बोला है कि please check your Insta right now. Some breaking news is coming in apparently. क्या है? Ooh. क्या? Especially for you. Oh my God. क्या है भाई? अरे भाई. So if everyone's wondering what's happening, Lionel Messi ने अभी उसका पोस्ट डाला है by the way, which I think in within an hour has got 3 million likes. 3.6 million. अच्छा उसने लिखा भी है कुछ यार. And that is थोड़ा सा वो. I hope one day I can come back and not just to say goodbye as a player, as I never got to. Last night I returned to a place I miss. Oh my God. अरे यार ये कुछ ज़्यादा ही crazy है यार. We have lost AKG for the whole episode, guys. It's done. Thank you so much for tuning. What do you genuinely think? क्या लग रहा है आपको? नहीं ये You think he's coming back? कुछ friendly क्या लग रहा है? कुछ
Early thoughts. एक मिनट थोड़ा सा Tell he gathers thought. Suyo, can you tell us what you We feel got about this? Messi and Yamal together before GTA 6. ये comment आएगा भाई. See, one thing we all know for sure, he's definitely going to come back one day. Now, whether he's going to come back as a player or not, that is very uncertain and it is very highly unlikely. I feel so, as a player. He's definitely going to come back. He said it. This is not today that he's saying it for the first time that he wants to come back. If you look at his interviews that he has done in the past since leaving Barcelona, he's always said one thing, that he wants to say goodbye in his own way because he never got a chance to say it. So I think so he's very eager to come back to Camp Nou and at least be present in front of the fans for one last time. Because the last time he left, nobody knew he was leaving. The goal which he scored against Celta Vigo, nobody knew that it was his last ever goal. And even he didn't knew it because he was all planning to renew his contract. But I think so he definitely wants to come once and say goodbye in his own way. That is his biggest wish. यार लुकिंग एट मेसी कैंप नाउ में ये तो मेरे को गूज बम्स दे दिया यार मतलब यार आई फील लुकिंग एट दिस पोस्ट जो कैप्शन उसने डाला है अगर वो आ गया वापस भले 4 महीने के लिए आ जाए ऑन अ लोन डील यूसीएल अगर जीत गया आई एम रियली सॉरी मैड्रिड अब मुझे नहीं लग रहा अगर मेसी आया तो बट ऑब्वियसली चैलेंज ये 5 मिनट ही हुआ है यार बहुत ज़्यादा वो अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बट आई मीन I am out of words यार मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा I'm sorry So let us know because AKG is clearly still lost for words. Let us know अगर आपको लगता है कि वो पियर्स मॉर्गन का इंटरव्यू पूरा स्मोक स्क्रीन था and you can see Messi and Ronaldo one more time for the last 4 months of the La What is Liga this guy season. saying, man? You never know guys, you never know. Everyone's very happy about it but quiz round तो आने वाला है. Rivalry face off is right around the corner. Before that we have to talk about something very local which is Indian football. Why? We talk about football here. We हम talk सब इतना about अच्छा खुश थे यार दुखी का माहौल क्यों राइड कर रहा है यार एकदम अभी क्या करे क्रिकेट की खुशी भी हो गई अभी तो थोड़ा दुख का माहौल है यहाँ पे गंभीर माहौल है पूरे जगह पे यहाँ पे बट लुक द बिडिंग टाइम फॉर ISL इज गॉन नो फ्रेश बिड्स वर एक्सेप्टेड और नो फ्रेश बिड्स वर गिवन उनको चांस था लास्ट ईयर to renew it while the season was on. They said no. August mein chance tha. They said no. We'll get better bidders. No one's taking it. Forget the national team for a second. Will we see another fruitful league anytime soon? At the face of it, nobody knows. I know it's more about European football की हम बात कर रहे हैं, but people who don't much follow Indian football as तो उसको मैं context अगर दे दूँ तो just think of इसकी कोई क्लब है जो अपने आप को फेडरेशन जो हमारी है वो अपने आप को रियल मैड्रिड समझ रही है एंड जो हमारे प्रेसिडेंट है ही थिंक्स दैट ही सम सॉर्ट ऑफ पापा पेरेस कि भाई मैं सबको घुटनों पे ले आऊँगा या कुछ बट दैट्स वेकअप टू रियलिटी दैट्स नॉट द केस आपके पास लास्ट ईयर था एंड सी मैं किस स्टैंड पॉइंट से इस चीज़ पे भी आ रहा हूँ कि किसी को फ़र्क भी नहीं पड़ता आई एम सॉरी टू से आप IPL अभी आपने क्रिकेट का मेंशन करा हमें एक जो लोग पूरे इंडिया को पता होता है कि भाई अगर एक प्लेयर भी ट्रांसफ़र हो रहा है आई डोंट इवन फॉलो क्रिकेट बट आई नो संजू सैमसन इज़ गेटिंग ट्रांसफर टू दिल्ली फॉर सम रीज़न और यहाँ पे आपके पास एक लीग नहीं है फुटबॉल की टॉप टियर लीग नहीं है एंड नोबडी गिव्स अ शिट नोबडी इज़ टॉकिंग अबाउट इट बहुत ही कम लोग हैं जो कोर जो फॉलो करते हैं आई नो सागर डज इट बट नोबडी केयर्स ISL के बारे में कोई डू आई सी एनीवन प्रोटेस्टिंग अबाउट इट देर आर अ लॉट ऑफ एंड आप तो अभी सिर्फ फ्रंट एंड पे देख रहे हो लॉट ऑफ गिग वर्कर्स होते हैं जो पूरे लीग को चलाते हैं दे आर ऑल आउट ऑफ जॉब्स क्लब्स हैव सस्पेंडेड द ऑपरेशंस मोहन बगान सस्पेंडेड द ऑपरेशंस वन ऑफ द लेगेसी क्लब्स आई नो ऑन द फेस ऑफ इट नहीं है बट दे हैव डन इट एंड आई डोंट नो लाइक इट्स अ ब्लैक होल अनि मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि उसके बारे में हम जितना बात करेंगे और वो गड्ढे में ही जाते रहेंगे आई होप देर इज़ अ रेजोल्यूशन टू दैट बट आई एम एक्सट्रीमली डेवस्टेटेड मतलब होपलेस हो चुका हूँ मैं तो कुछ भी अगर मैं बात करूँगा एक अपडेट आता है दूसरा अपडेट उसको काउंट इट्स लाइक 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड्स तो दैट्स इट आई पता नहीं लाइक हम लोग हमेशा बोलते हैं कि लाइक इंडिया में पीपल क्रिकेट को ज़्यादा दे गिव इम्पोर्टेंस टू दैट क्रेडिट गोज टू देयर बोर्ड होल क्रेडिट गोज टू द क्रिकेट बोर्ड उन्होंने उस स्पोर्ट को ऐसा बनाया है एंड देन उन्होंने उतना इन्वेस्ट किया है एंड दे न्यू हाउ टू नर्चर
football, cricket in India that went on to win the World Cup, and उसके बाद ही I guess cricket का craze एकदम बढ़ गया. It's never that कि like India में for athletes, it's never कि like आप शुरुआत से like even for other athletes, बैडमिंटन प्लेयर हो गए, तुम लोग के रनर्स हो गए, दे आर नेवर गिवन द अपॉर्चुनिटी कि हम तुम्हें अभी से नर्चर कर रहे हैं, गो एंड विन इट. पीपल विन इट एंड देन दे गेट द रिकग्निशन. तो फुटबॉल का सिनेरियो अभी ऐसा इसलिए है बिकॉज द फुटबॉल फेडरेशन हैज़ नॉट proven their worth. They have not done anything जिसकी वजह से because Indians, we are very passionate. We will support any team. We will support kabaddi, we'll support hockey. If they go and perform, पागलों की तरह the stands will be full, I can guarantee it. The Indian Football Federation, they pointing the fingers at the fans कि fans आके नहीं देखते. तुमने भी किया नहीं है जिसकी वजह से fans नहीं आ रहे हैं. This is the fans who come to stadiums जहाँ पे bathroom नहीं चलती, पानी नहीं मिलती अभी भी. आपको लगता है कि sarcastic बन रहे पर नहीं. And मेरे लिए ज़्यादा दुखी की बात इसलिए क्योंकि we were waiting for the ISL because Northeast United अभी दुरान कप जीत के आई है. Last season also they won that. And we were like ready. Aladin Ajare, like he was giving us the moment. And हमारे उधर the hype was real. And when अभी बंद हो गया है, people protested for a few days and then it got over. People are over it. Nobody's talking about it. Nobody is like even worried कि like क्या होगा नहीं होगा. Only a few people. So the future looks very dark, to be honest. I come from a very small town जहाँ पे we do not have the privilege to watch इतने बड़े games. हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में तो फुटबॉल एकदम ऐसे जीरो ही एक तरीके से आप बोल सकते हो. ये जो बोर्ड है ये इतने क्लूलेस है. दे डू नॉट इवन ब्रॉडकास्ट गेम्स भाई. मतलब यार इंडिया का मैच चल रहा है हमारे यहाँ, हम नहीं देख सकते. हमको डीडी स्पोर्ट में तो दिखा दे भाई मैच में हाथ जोड़ रहा हूँ. जब हमको मैच देखने ही नहीं मिलेगा, जो छोटे बच्चे हैं वो अपने पापा से बोलेंगे पापा 25 रुपए का रिचार्ज कर देना एक्स ऐप में, फिर मैं जा करके वो मैच देखूंगा. अरे नहीं होता भाई, वो नहीं हो सकता. तो जब तक आप इस स्पोर्ट को फ्री ऑडियंस तक पहुंचाओगे नहीं, जब तक बच्चे देखेंगे नहीं सुनील छेत्री को खेलते हुए या अभी अपूया को खेलते हुए, तब तक वो पैशन कैसे ग्रो होगा फुटबॉल के लिए यार. तो आई थिंक दैट ब्रॉडकास्टिंग भी करवाइए आप, गवर्नमेंट ऑफिशियल चैनल्स में तो करवाइए एटलीस्ट, जहाँ पे आप फ्री करवा सकते हैं. बचपन में भी सौ क्रिकेट फ्री, कभी भी वो ऐसे संडे उठता था पापा क्रिकेट देख रहे हैं, डीडी स्पोर्ट्स में ही देख रहे हैं, केबल नहीं है घर में. अब फुटबॉल तो मैच ही कब आ रहा है मेरे को पता ही नहीं है, देखने तो दूर की बात है. बट यू नो देयर वाज ऑलवेज अ टाइम इन क्रिकेट एंड आई रिलेटेड दिस टू द फैन पैनल कि फैंस यूज्ड टू वॉच इंडियन प्लेयर्स अपने जैसा कोई स्क्रीन पे जीतते हुए. Unfortunately, and I love our Indian team, right? It's not a disrespect, but they've not watched them win anything. Can you go tell a kid that just for the sake of appearance, you have to be like this guy who maybe has not won too many trophies? Yes, ISL was that hope. आपने आपके चेत्री को देखा जीतते हुए, so you're like, okay, I can be this. But realistically, is it that time कि आपको लगता है कि forget about Indian icons, you need to take your, like Pranay Bhai said, don't blame the fans only, don't blame other football leagues that they support that are not this. The fans have tried everything. Do you think it's time to then focus, take these leagues and go all the way down? मतलब जैसे ISL initially started, वो legends को लेके आए थे. There were Diego Forlan, there was Del Piero, Roberto Carlos खेलता था, Nicolas Anelka, Trezeguet. And that was a huge boost for the Indian players as well. कि वो लोग को इनके साथ experience share करने मिल रहा है, field share करने मिल रहा है. And on behalf of the fans, आई डोंट थिंक सो कि इंडिया में ऐसे फुटबॉल फैंस नहीं है. हम आपस में भी देखते हैं, हम राइवलरी रूम में भी देखते हैं कि फ़ैन क्लब के ओनर्स, फ़ैन क्लब के लोग आते हैं. वी आर सेल्स, हम लोग यूरोपियन फुटबॉल सपोर्ट करते हैं. सो वी आर नोवेयर अराउंड कि हम लोग इंडियन फुटबॉल बैक नहीं करेंगे. वी आर ऑलवेज देयर फॉर इंडियन फुटबॉल. बट जो रिजल्ट हमें मिल रहे हैं, जो फ़ैन एंगेजमेंट हम लोग चाहते हैं कि एटलीस्ट वी गेट सम मतलब मोमेंट्स रहे, एटलीस्ट टीम्स फाइट्स, मतलब टीम फाइट करे कोई कॉम्पिटिशन्स में. जैसे AFC के लिए हम लोग को अभी देखा कि मोहन बगान के प्लेयर्स फॉरेन ट्रैवल नहीं कर रहे, एंड प्लेयर्स एंड फैंस वेंट फाइटिंग टू द प्लेयर्स कि तुम लोग क्यों नहीं जा रहे. तो देयर इज़ नथिंग फ्रॉम द फैंस कि वो लोग क्यों जा रहे हैं या वैसा वगैरह. एंड जो सिक्योरिटी की बात होती है, रोनाल्डो डिडंट कम टू इंडिया. फीलिक्स के लिए लोग ये बार्स क्रॉस करके जा पा रहे थे. अगर रोनाल्डो आता तो आई डोंट थिंक सो पॉसिबल हो पाता. So we aren't prepared yet for that big level, but taking easy steps and smaller steps would be a better solution for Indian football, I feel. Maybe we have to have an honest, long discussion just about this. It feels very unjustified कि हम इतने short में ये बात कर रहे हैं, but I think जो हमने depth में यहाँ बात की है 5-6 मिनट में, I think that's been really a very good
marker for fans to understand कि कितने deep rooted sentiments हैं यहाँ पे, and there's no right and wrong, it's all about how you work together. So if you all agree with what our panel has said here and our fans have said specifically right here, right? Let us know. आपको लगता है कि नहीं आप गलत हो, नहीं आप ज़्यादा नहीं कर रहे हो, तो let us know why, and maybe we can all come to a solution together. But it's now time to get a little happier in the studio. Not for the fan, not for the creators, because it's time for the rivalry face-off, guys. तो अभी तक टोटल काउंट कितना चल रहा है? क्रिएटर्स कितनी बार जीते हैं? The creators right now are leading 5 versus 3 to the fans. Ooh, okay. So, ninth, okay. We have no to get the pressure. lead. No pressure. No pressure at all. What pressure? What pressure? All right. Are we ready, Mr. Ekhi ji? Yeah. Let's begin round 1. Which team has won the most number of ISL matches in its entirety? 9, 8, 7, मोहन बगानी होगा यार. एक सेकंड, अगर जो आपको पास नहीं करना, you can say no. मोहन बगान कैसे? मोहन बगान 2019 में आया. AKG guessed Mohan Bagan. I would like to say it was a good guess, but मैं sarcastic बन रहा था, guys. Already give me a chance. The creators are still on 0, feeling the pressure from round 1. Starting with you, Placid. Perico किस ला लीगा क्लब का निकनेम है? I would go with Rayo Vallecano. Trauma बहुत real है, but the right answer is Espanyol. Nice. That's okay. It's okay. It was a tough one. ठीक है. 0 to the fans, 0 to the creators. How many English players have played for Real Madrid? 6, 8, or 9? 6. Confidently wrong answer. The right answer is yes, right there. Unfortunately, that is still 0 to the creators. On to Arsenal, who ironically is going second. भाई ये आर्सेनल जोक्स आते हैं मुझे, क्या गाली पड़ती है ना डीएम में तुम लोग की वजह से. Alright, let's go. Which Premier League stadium is nicknamed the Cathedral on the Hill? Goodison Park. Everton is the wrong answer. The right answer is St. James Park, which is Newcastle United. Nice guess. It was a very tough question. 2 tough questions out of the way. Things will get easier. I lie a lot sometimes. Score is still 0 over there and 0 right here. Pranay bhai getting full trauma from his last episode. भाई. Editor साहब, do your job. ऐसे blip ऊपर आ जाएगा. Who is the youngest ever player on his debut in the Premier League? In the debut. On his debut, yeah, he's the youngest. Academy player होगा. No man, You don't know? No pass. Are you stealing? No steal? 99% sure. Are you sure? The right answer is Nwaneri. Could have taken the steal. Arsenal fan could have taken the steal. In the famous match where Messi took off his jersey to celebrate and showed it to the crowd, who assisted that goal of Messi's? Oh my God. क्या question है यार? Pass is going on right now. It was Jordi Alba. Yeah, the right answer. 0.5 on the board for the fans. That's a good pass. The fans have picked up the game since the last episode. जब भी बारसा ने PSG को 6-1 हराया था, बारसा का सेकंड गोल किसने मारा था? 6-1. Can I seal? मैं Iniesta. That's the wrong answer. It was a trick question. It was an own goal by Kurzawa. Oh my God. Why? Sir. We're on now to Sahil. The fans are on 0.5. The creators are on 0. Cristiano Ronaldo has the most assists in the Champions League. Messi is on 3. Who's second? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Xavi Hernandez. Wrong answer. The right answer is Angel Di Maria. So, the fans are still on 0.5. The creators are on 0. Come on. Redemption time. Okay, let's go. Which 2 non-Spanish Real Madrid players feature in their top 10 all-time appearances? One is Benzema. Who's the second? Luka Modric. Confidently correct answer this time. Clutch. And just like that. इतनी खुशी मुझे आज
they're in the lead with 1 point and the fans are on 0.5. Which English club has the nickname the Potters? Pass down officially. Stoke City. Second pass is also well done. Clutch is going on. The scores are tied. 1 to the fans and 1 to the creators. Things are heating up, but the fans, only 1 pass left. Who assisted Messi's first goal? Ronaldinho, man. The GOAT. The GOAT. That's why he's the GOAT. That's why he's the GOAT. Like I said, in rivalry room, I don't always cheat. I just cheat sometimes. Okay, I want to create that iconic celebration, man. Come on, let's do it. Let's do it. The fans are currently on 1. The creators are on 2. अगर जो वो सेलिब्रेशन के बाद हार गए तो बॉस क्या रील कटने वाली है. मैन सिटी वर्सेस इंटर मिलान UCL फाइनल was played in which city? इस्तांबुल था. Right answer. अभी मजा आएगा ना भिड़ो. We are having a great one today. It's 2-2, guys. It's 2-2. When Barca beat Manchester United 3-1. क्यों मैंने अपने आप को तोड़ा यहाँ पे? Who scored the first goal for Barca? I can take a guess, but I guess आपको पता होगा क्या? अरे bro. 6. Just say it. It's there. I think it's there. Just say it. Messi. He said Messi. No, it's not. It's the wrong answer. The right answer is Pedro. So, currently they are still on 2. The fans are on 2. Mr. Clutch, on to you. Before moving to Arsenal, Giroud won the League One title for which French team? Montpellier. Correct answer! Wow! 3 correct answers. I think the title is slipping on this side. It's slipping. That's 3 to the fans and 2 to the creators. जोर से तालियां मारो यार. Which Manchester United player has a record for the most Premier League titles? Most Premier League titles. He doesn't know. She's passing it. You can, if you want. Pass. Scores. Wrong answer. Then. Ryan Giggs. Oh shit. Unfortunately, that pass did not come to fruition. The fans are still leading 3-2. Who is the fastest player in the Premier League to reach 100 goals? I guess भाई गाली पड़ेगी, but Erling Haaland. It was a trick close question because Haaland is on 99. The correct answer is still Alan Shearer. Sir Alan Shearer. Which English team has the nickname the Lily Whites? 10, 9, 8. They all know? 6. Swansea. 5, 4. Wrong answer. He said Swansea. What's the right answer, guys? Spurs. The fans are still leading on 3. The creators are on 2. Since the year 2000, only 3 players have scored in the World Cup final and UCL final. Messi, Mandzukic, and who else? Is it Benzema? No. The right answer is Zidane. What is the main sponsor for Borussia Dortmund's jersey this year? Oh my god, I don't know the name. I know the icon. You can pass it. हाँ, pass. 1 and 1. 1 and 1. The correct answer is Vodafone. यहाँ पे नेटवर्क छूट गया शायद अनफॉर्चुनेटली. क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने ला लीगा में सबसे फास्टेस्ट 100 गोल मारे थे. किसका रिकॉर्ड तोड़ा उसने? राहुल. The right answer is Puskas. Nice try. It was tough. Who won the first Ballon d'Or Femini? Putellas. Alexia. No. The right answer is Ada Hegerberg. I couldn't have guessed it. मेरे दिमाग में वो 2020 वाला. The creators now at the mercy of the fans. If you get this right, your team wins. Which player has the most number of UCL goals without ever scoring a hat-trick?
Pass. Are you passing? No, not. They refused to answer. So the fan begged and begged and begged, but no one listened. The right answer was Mueller. If they passed, they would have won. And now they've given the creators one last chance. Come on, God, please. Which Barcelona player who made 100 plus appearances for Barca joined Man City in 2009? 2009. 9. कौन है? The right answer is Silvinho. Kasam. And that means the fans have won! That was such an intense face-off. The creators tried their best, but in the end, the fans have prevailed. Congratulations! साला बारसा की जगह रियल मैड्रिड बोलता तो मैं रोबिनियो बोलता यार. And that was this episode of the Rivalry Room. अगर जो आपको मजा आया तो please let us know in the comments what you like, what you didn't like. Do you agree with the fans? Do you agree with the creators? Controversial opinions तो बहुत ही थे इसमें. And please don't forget to hype the video, leave a like on it, subscribe to the Game On FC, and अगली बार बोल देना आपको कौन चाहिए पैनल में. Until then, keep watching and subscribe to